सीमासा कल्चरल ट्रूप का इतना सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं करबी कल्चरल ट्रूप। मनोज को फोन करना है ये ऐसा Thank you so much करबी कल्चरल ट्रूप फॉर दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। अब अंतिम प्रस्तुति लेकर आ रही है नेपाली कल्चरल ट्रूप।
बसेर उठाइदिनु हो मखमली चोली माथि छड्के लायो घालकी ए मखमली चोली माथि छड्के लायो घालकी रूप सुन्दर मेरी आजु दपकै बालेकी मखमली चोली माथि छड्के लायो घालेकी रूप सुन्दर मेरी आजु दपकै बालेकी हेरिनु भई रूप सुन्दर मेरी आजु दपकै बालेकी Thank you so much Nepali Cultural Troupe for this beautiful performance. एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर किसी का फोन गुम हो गया है तो हमें ये मिला है, काइंडली आप लोग इधर आके कलेक्ट कर सकते हैं. Moving on to the program, I would like to invite our guest of honor, Honorary Secretary of BCCI Shri Devaji Saikya sir, to kindly come forward and share
some inspiring words with us. Sir, please. Very good evening to all. Respected Debulal Garlosa ji, CEM, Dima Hasa Autonomous Council, Madam Garlosa ji, all the executive members of Dima Hasa Autonomous Council, office bearers of Dima Hasa Sports Association, office bearers of Assam Cricket Association, office bearers of Garampani Sports Association, my dear cricketers, guardians, and cricket enthusiasts who are present here. I'm extremely delighted to be present amongst you in spite of a very poor health for last 3 days. In fact, I requested GTG that I won't be able to come at 11 o'clock, but at 1 o'clock the doctor gave me the green signal. I came, and it was a dream come true for us. When we first visited this place about 5 years ago, this is not the situation. Because of the visionary leadership of our CEM, Debulal Garlosa ji, this has been becoming the day of the light of the day. When this beautiful cricket project was inaugurated by Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, on 4th of December, if I'm not wrong on the date, last year, during his speech in that corner, he announced that it is a fantastic facility. He congratulated all of you, all the inhabitants of Dima Hasa, including the members of the Dima Hasa Autonomous Council, that it is fine, but one thing is missing, and that thing is that you must have a floodlighting system here. And he made a request to the Assam Cricket Association that do it as fast as possible. And when we went back to Guwahati, we immediately contacted the firm from Bangalore to come do the recce work, do the designing in this landscape. There should not be any hassles to the greenery of this area. So they have given us a very good project, maintaining the greenery, maintaining the ecology. And within 6 or 7 months' time, this is the outcome. And I'm really grateful that I am being part of the inauguration inaugurated by our Honorable CEM today. And I hope this will bring lot of cricket interest to this area. And today I must admit one thing, that when I came to Dima Hasa in 2020-21 during the midst of COVID, and when we wanted to have some areas in Haflong, then Honorable CM said that don't do it in Haflong. Haflong already has the cricket and football stadium. Go and do it somewhere else. So he given us this option of having a stadium in Umrangso, and so does 3 places. And when we saw this, we immediately accepted this proposal to have a stadium here. And I must admit that when Assam Cricket Association wanted to have a cricket stadium here, one of my friends who has come from England today, that why you have developed cricket in Dima Hasa. Dima Hasa is known for football and popularity of football. But the way the Chief Minister, the CM has batted today, all the EMs had batted today and handsomely defeated Assam Cricket Association. I thought that that was the right decision, that there is lot of talent here, and I am sure in 2-3 years' time, there will be superstar cricketers coming out from this area. So I wish you all the best. And last but not the least, I have to say that when I visited Haflong, I saw the Honorable CM was doing gym, he was talking about football, and he said me that after 15 years he was doing cricket today. I don't believe that. Don't believe that. He is regularly having some secret practice area in Haflong where he is regularly attending and doing cricket practice. Congratulations to your team for winning the match, and I wish that this tournament in the name of Sangya Tularam Senapati ji, it was started last year in Maibong, now this is the 2nd year, and whenever there is any lack of venue, this venue is always there. This is your property. Hold as much cricket here as possible, and Assam Cricket Association will maintain the ground. Assam Cricket Association will have good matches here. Assam Cricket Association will have good coaching center, coaching camps here, so that not only players from Assam, from outside also come and enjoy this wonderful scenery, the landscape here.
and we should be very proud that in coming 2-3 years there will be a 5-star hotel who is the Honorable CMS already planned, and I'm sure if that happens, this will be one of the destination cricket center in the country. We'll give a tough competition to Dharamshala. Thank you so much. Enjoy the evening. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now, I'd like to invite our chief guest, Honorable Chief Executive Member of Dima Hasao Autonomous Council, Shri Debulal Gorasaji, to kindly come forward and share some valuable words with us. सबका नमस्कार जुट हाय। तो आज बहुत खुशी का दिन है हम लोग का उमरांग शोभा डिमा हासाओ आसाम के लिए। तो इसमें फ्लैग लाइट यहाँ पे इनॉग्रेशन ओपनिंग के लिए भी हम लोग का ऑनरेबल, आपका खुद का बदन भी ठीक नहीं था लेकिन यहाँ पे आया है। बीसीसीआई का सेक्रेटरी देवजीत चौकिया जी, सुबह तक उनका तबीयत ठीक नहीं था तब भी आया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो फ्लैग लाइट और ये स्टेडियम असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी और देवजीत चौकिया जी अगर नहीं होता रहा तो ये ऐसा कभी सपना जैसे लग रहा है हम लोग ऐसा नहीं होता रहा। तो उनके लिए मैं उनका टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथ जितना भी यहाँ पे डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का ईएम और बीजेपी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्रिटिश हाउसेन जी और असम क्रिकेट एसोसिएशन का जितना भी ओपेस बैरियर टीम आया है और डिमा हासाओ का स्पोर्ट्स का जितना भी यहाँ पे है और 2 टीम भी यहाँ पे तुलाराम सेकेंड एडिशन 20 ओवर का अभी खेलने जा रहा है। तो इसमें आप लोग दोनों टीम को भी अच्छा से खेलिए। हम लोग जब बचपन में क्रिकेट खेलता रहा तो बॉल बैट बहुत माने एक ही बैट को छीना छीने होके हम लोग खेलता रहा, लेकिन आज का दिन में ऐसा फ्लैग लाइट ऐसा अच्छा बढ़िया सा स्टेडियम मिलना तो सपना जैसे लग रहा है हमें को। और हम आशा करता कि असम डिमा हासाओ अभी स्पोर्ट्स में बहुत आगे लेके जाता देवजीत चौकिया जी ने और हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने पूरा असम को भी ले जा रहा है, पूरा देश को भी ले जा रहा है। उसमें डिमा हासाओ का लोग भी हम लोग ये मौका हम लोग नहीं गंवाना है। नौजवान लोग हम लोग खेलना है, हम लोग सिर्फ जो फुटबॉल भी खेलना है, हर स्पोर्ट्स में भी हम आशा है डिमा हासाओ का यूथ लोगों का ऊपर में कि फुटबॉल में जो नाम लेके आया अपना डिस्ट्रिक्ट को अपना असम को, तो ऐसा वहां पे हम लोग क्रिकेट में भी लेके जाना है। और अभी समय अच्छा है, टाइम अच्छा है। असम का चीफ मिनिस्टर प्यार माया करता है और देवजीत चौकिया जी ने भी बीसीसीआई का सेक्रेटरी डिमा हासाओ को बहुत प्यार माया करता है। तो इसमें हम लोग भी अपना यूथ लोग, जवान लोग और यहाँ का जो स्पोर्ट्स जो लोग है डिस्ट्रिक्ट का, वो भी आप लोग साथ देके इसको अच्छा से मेंटेनेंस करके अच्छा से टूर्नामेंट करा के हम लोग आगे अभी जो बिच्छी लगाने से आने वाला दिन में फल मिलेगा ये सोच के हम लोग काम करना है। तो इसलिए हम पूरा भरोसा है। और फिर से डिमा हासाओ का तरफ से देवजीत चौकिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार थालिया से खड़ा होकर उनको स्वागत करिए, क्योंकि हम लोग आशा नहीं था कि ऐसा स्टेडियम मिलेगा, ऐसा फ्लैग लाइट मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आया था दिसंबर महीना में अनाउंसमेंट करके गया, तो अभी जुलाई भी खत्म नहीं हुआ, जुलाई में इनॉग्रेशन करने मिला है। और हम आशा रखता है उस दिन जब चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बोल के किया है वहाँ पे यूथ लोग एक जो डिमांड था जो फुटबॉल ग्राउंड का दौड़ने के लिए ट्रैकिंग पॉइंट ना कुछ ऐसा मांगा था, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेगा जल्द से जल्द। दिसंबर जनवरी का पहले उसको भी फुटबॉल ग्राउंड में ट्रैकिंग भी हम लोग कंप्लीट कराएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देवजीत चौकिया जी को, उनका टीम को। और हम लोग आशा देता कि ये फील्ड को मेंटेनेंस में अच्छा से मेंटेनेंस करना है और उमरांशो का जो स्पोर्ट्स का जो लोग लवर्स है
आप लोग इसको खेलिए, मेंटेनेंस करिए, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता हम भी है और असम का लीडर लोग प्यार करने वाला दिमा हसाओ का लोग भी है। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल के छोटा सा वक्तव्य यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, जुटाई खत्म। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड एंड वैल्यूएबल वर्ड्स। अब मैं यहाँ उपस्थित हमारे टीम ब्रिगेडरीज को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग फील्ड में जाके हमारे दोनों टीम के प्लेयर्स के साथ एक इंट्रोड्यूस करें। चलिए अंदर 19 भी सर हम लोग 2-3 अंदर हम सुनो दो अंदर 19 आपको जिम में मिला था ना? वो नहीं कितना उम्र? हम लोग अंडर 19 2 खिला नहीं लगे उनका तो प्लेयर निकलेगा। अरे अरे आप निकलेगा सर, ये बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे। ठीक, ऑल द बेस्ट। अच्छा से खेलो, ऑल द बेस्ट। 6/6 ऑल द बेस्ट। आता ठीक है खेला हम तो ये मिला नहीं। सेनापति संज्ञा तुलाराम का जो स्टेडियम बना है यहाँ पर असम क्रिकेट एसोसिएशन ने बनाया था, उसका इनॉग्रेशन का टाइम में हमारा साथ उपस्थित था सीएम देवलाल गार्लोसा जी, और जब इनॉग्रेट किया था असम का मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने अनाउंस किया था कि स्टेडियम बहुत अच्छा हुआ है लेकिन यहाँ फ्लड लाइट का सिस्टम नहीं है। सो असम क्रिकेट एसोसिएशन को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि फ्लड लाइटिंग सिस्टम कर देना चाहिए। तो वो माननीय मुख्यमंत्री का जो रिक्वेस्ट था हम उसको ऑर्डर मानकर 6 महीने का अंदर पे आज ये फ्लड लाइट सिस्टम लगा दिया और आज माननीय सीएम साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि यहाँ पर आज का रात का माहौल में भी इतना अच्छा क्रिकेट होने जा रहा है। यहाँ जो टूर्नामेंट हो रहा है, सेकेंड एडिशन है टूर्नामेंट, यहाँ अंडर फ्लड लाइट्स होगा। मेरे ख्याल से ऐसा परिवेश होने से अगले दिन में दिमा हसाओं से काफ़ी एनकरेज मिलेगा जो क्रिकेट में रुचि रखता है और यहाँ से अच्छा अच्छा प्लेयर निकलेगा। फिशर ठीक है सर।
अब मैं हमारे टीम डिग्निटरीज को अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सभी लोग आगे आके मैन ऑफ द टूर्नामेंट का जो प्राइज है वो रिवील करें। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे टीम डिग्निटरीज को, कृपया वो सभी आगे आके मैन ऑफ द टूर्नामेंट का जो प्राइज है उसे रिवील करें। आप साइड में आ जाओ। ये जो बेस्ट प्लेयर मिलेगा वही लेवल ऑफ स्कोरिंग में नहीं होगा पब्लिक में जब मानेगा दूसरा कर सकते हैं ना, इसीलिए साथ 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 थैंक यू। ठीक है सर, हर्ष बनेगा धीटी को बोल दीजिए मेरे को धीटी हम आप ये आप एंजॉय कीजिए। सर सर बुरा नहीं मानेगा तो सर ठीक है बुलाया बुलाया सब कुछ बुलाया। ये लोग कौन बोला नेशनल एंथम रहा अभी कौन बुलाया बोला ना उधर में रहने के लिए कौन बुलाया अभी तो आप लोग नहीं बुलाया बोल के तो सब नहीं दूसरे का बात नहीं सुनना है आप प्रोग्राम पे चलो उसके हिसाब से चलना अभी नेशनल एंथम के लिए कुछ टाइम नहीं मैं सभी प्लेयर से अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया आप लोग मैदान में आ जाएं। मैं सभी प्लेयर से अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया आप लोग मैदान में आ जाएं जल्द से जल्द। Now I request everyone to kindly rise for the national anthem.
so much. So now the first match of second Senior Tularam T20 cricket tournament will be played between Umrangsa Cricket Club versus Deungra Sports Association. तो आप सभी आनंद लीजिए इस मैच का और सपोर्ट कीजिए टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद।